ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم سب کسی نہ کسی وقت اس ڈراؤنے خواب کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک ویلن سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بھلے کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لیں آپ جگہ سے ہلتے نہیں۔ کوئی دروازہ کھولنا چاہتے ہیں مگر وہ دروازہ کھلتا نہیں۔ اب سوچئے اگر یہ بدترین خواب سچا ہو جائے تو آپ اپنی جان کیسے بچائیں گے؟ یہ سچا قصہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کا ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ ہے جینیفر مورے کی کہانی۔ سن 1995 ہیوسٹن ٹیکساس میں ایک 25 سالہ وکیل جینیفر مورے ڈنر پر جاتی ہے۔ جمعے کی رات تھی اور ہفتے بھر کی تھکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھلانا چاہ رہی تھی۔ مل کر وہ سب ریسٹورانٹ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ایل ہاؤس نامی بار پارٹی منتقل ہو جاتی ہے۔ رات کے 12 بجے جینیفر کا ایک دوست اسے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ جینیفر بڑے اطمینان سے اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوتی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے اس نئی بلڈنگ میں فلیٹ خریدا تھا۔ اس کے جاننے والوں نے اسے بیو پارک اپارٹمنٹس کی بہت تعریف سنائی تھی۔ بلڈنگ ایک گیٹڈ کمیونٹی میں تھی، ایک محفوظ محلہ اور 24 گھنٹے سیکیورٹی کا انتظام۔ جینیفر کی طرح بہت ساری کنواری خواتین اس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہائش کرتی تھیں۔ جینیفر اپنی دوسری منزل کے فلیٹ میں داخل ہوتی ہے، دروازہ لاک کرتی ہے، 2 ایکسٹرا کنڈیاں لگاتی ہے اور نہا دھو کر بستر میں لیٹ جاتی ہے۔ جینیفر تھکی ہوئی تھی تو اسے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تقریباً رات کے 4 بجے اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور اس کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ رات کی سیاہی میں جینیفر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی وزنی چیز رکھی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کو اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک اجنبی مرد اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جینیفر اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اسے روکنے اور اس کا ہاتھ چاقو کی تیز دھار پر پڑتا ہے اور ڈر کے مارے وہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی تو بہت سارے پڑوسیوں نے آواز سنی ہوگی اس کی، شاید سیکیورٹی گارڈ نے بھی۔ 15 پڑوسیوں نے اس کی مدد کے لیے فریاد سنی اور سب واپس جا کر سو گئے۔ بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کی تھیوری کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ ماہر نفسیات بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کا نام اس انسانی فطرت کو دیتے ہیں جو اکثر لوگ ایک ہی حادثے کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی زخمی کو دیکھتے ہیں مگر کوئی بھی مدد کرنا نہیں آگے بڑھتا ہے، سوچ کے کہ کوئی اور مدد کر دے گا۔ صحیح کہا آپ نے۔ جینیفر کی 15 پڑوسیوں نے ایک عورت کی چیخوں کو سنا مگر ہر کسی نے یہ سمجھا کہ میں کیوں اس معاملے میں پڑھوں، میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں، اپنی نیند خراب کروں، میں کیوں پولیس کو فون کروں، کوئی اور کر چکا ہوگا یا کر لے گا۔ تو جینیفر چیختی ہے اور چیختی ہے مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ آدمی اس پر جنسی تشدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جینیفر اس سے لڑتی ہے۔ وہ ہار نہیں مانتی، ہاتھ پاؤں مار کے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاموش، چپ ہو جاؤ جینیفر ورنہ۔ اسے جینیفر کا نام معلوم تھا تو یہ آدمی جینیفر کے جاننے والا تھا۔ وہی تو، جینیفر اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے وہ بالکل اجنبی لگتی ہے۔ اس بات سے اور بھی ڈر جاتی ہے۔ جینیفر ہلک پھاڑ کر ہیلپ ہیلپ پکارتی ہے اور اس آدمی کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے چھری اس کی آنکھ پر جا لگتی ہے۔ اس کے چہرے پہ خون کے ریلے بہنے لگتے ہیں۔ جینیفر تکلیف سے اور بھی چلاتی ہے۔ حملہ آور جینیفر کی گردن پہ ایک کان سے لے کر دوسری کان تک چھری پھیر دیتا ہے۔ جینیفر لہو لہو ہو جاتی ہے۔ اوہ نو، اب مجھ سے اور کچھ نہیں سنا جائے گا۔ وہ درندہ جینیفر کو بالوں سے کھینچتے ہوئے باتھ روم لے جا کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم باہر نکلی
तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेनिफर बाथरूम से तौलिया लेकर अपनी गर्दन पर लगाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इतना सब हो जाने के बाद जेनिफर जिंदा है? बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लेना चाहिए उसे। जेनिफर को यही ख्याल आता है, मगर उसे याद था कि इस बाथरूम के दरवाजे पर कोई लॉक नहीं। वो दरवाजे से पीठ करके बैठ जाती है और बाथटब से अपनी टांगों को धक्का देती है ताकि दरवाज़ा खोलने वाले को मुश्किल हो। जेनिफर की आंख से और गर्दन से तेज़ी से खून बह रहा था। उसे मालूम था कि उसे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी। बेडरूम से जेनिफर को पैंट के जिपर की आवाज़ आती है। हमला आवर कपड़े पहन रहा था। जेनिफर की दुआ पूरी हो जाती है जब उसे अपार्टमेंट के दरवाजे का खुल और बंद होना सुनाई देता है। जेनिफर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर सुनती है। बिल्कुल खामोशी। सोचती है वो आदमी चला गया होगा। जेनिफर दरवाजे का हैंडल खोलना चाहती है, मगर उसका हाथ खून में तर था और हैंडल को मोड़ नहीं सकी। तकरीबन 5 मिनट तक जेनिफर दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लगी रहती है। उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोरी से उसका जिस्म कांपने लगता है। उफ, ये तो बहुत ही बड़ा डरावना ख्वाब लग रहा है मुझे। जेनिफर एक और तौलिया पकड़ती है, उसे दरवाजे के हैंडल पर रखती है और मोड़ती है। शुक्र है कि वो इस वक्त कामयाब हो जाती है। डरते डरते जेनिफर बाहर निकलती है, लाइट स्विच ऑन करती है, मगर वही अंधेरा छाया होता है पूरे अपार्टमेंट में। उस आदमी ने लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी काट दी थी। वो तो खूब तैयारी करके बैठा था। जी हाँ, गिरते पड़ते जेनिफर अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर टेबल पर रखे हुए घर के फ़ोन पर लपकती है। फ़ोन भी डेड पड़ा हुआ था। फ़ोन की लाइन भी कटी हुई थी। शुक्र है कि जेनिफर ने कुछ ही अरसे पहले मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। वो अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढती है, 911 इमरजेंसी डायल करती है। 911, आपकी क्या इमरजेंसी है? प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरा खून बहुत बह चुका है। उस आदमी ने मेरा गला काट दिया। खून हर जगह स्प्रे हो रहा है। अच्छा, अपना नाम बताइए और एड्रेस भी। जेनिफर अपना नाम और एड्रेस बताती है और हमले की तफसीलात भी। जल्दी करें, मैं बेहोश होने वाली हूँ। जेनिफर, मेरा नाम रिचर्ड एवरेट है। फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। एक नया तौलिया लेकर गर्दन को लगाएं। पुलिस और एम्बुलेंस आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं। कौन है आप? मेरा नाम ब्रायन गिब्सन है। मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप ठीक हैं? क्या हुआ? दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। सिक्योरिटी का आदमी शायद। सिक्योरिटी को हमने इत्तला नहीं दी है। दरवाजा मत खोलिए। दरवाजा खोलें। आपकी बैल्कनी से मैंने किसी शख्स को कूदते हुए देखा है। वो खून में भीगा हुआ था। दरवाजा खोलें ना प्लीज। मैं आपके लिए बैंडेजेस लाया हूँ। रिचर्ड, ये आदमी दरवाजा पीट रहा है। शायद सिक्योरिटी गार्ड मेरी मदद कर सकता है। पुलिस 1 मिनट में पहुंचने वाली है। दरवाजा अभी ना खोलें। ये 911 ऑपरेटर रिचर्ड एवरेट की नौकरी का पहला दिन था। उसकी पहली शिफ्ट थी, मगर वो बहुत ही तहम्मुल समझदारी से पेश आता है। जेनिफर, दरवाजा खोलें। जेनिफर, ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर्स ही हैं। मदद पहुंच गई है। जेनिफर दरवाज़ा खोलते ही पुलिस ऑफिसर की बाहों में बेहोश हो जाती है। जेनिफर को एम्बुलेंस में करीब के हस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर्स जेनिफर को देखकर हैरान थे। उसकी गर्दन का जख्म इतना गहरा था कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि जेनिफर जिंदा कैसे है।
जेनिफर के अपार्टमेंट के बाहर पुलिस ऑफिसर्स को सिक्योरिटी गार्ड ब्रायन गिब्सन मिलता है। ब्रायन अपना नाम बताता है, अपनी उम्र 26 साल बताता है। पुलिस ऑफिसर्स नोट करते हैं कि ब्रायन की बुरी हालत हुई हुई थी। दाएं हाथ पर एक छुरी का जख्म था, बाल बिखरे हुए थे, यूनिफॉर्म के कुछ बटन लगे हुए थे, कुछ खुले हुए थे, सिक्योरिटी हार्ट कहीं गुम हुई थी। ब्रायन गिब्सन अपना बयान देता है और कहता है, सर मैं बिल्डिंग का राउंड कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी दूसरी मंजिल की बालकनी से कूदा। मैंने उसका पीछा भी किया और उसे पकड़ भी लिया, मगर वो आदमी बहुत ऊंचा चौड़ा था। मुझ पर चाकू का वार किया और धक्का देकर पीछे के मैदान में भाग गया। लम्हों में वहां की झाड़ियों में गायब भी हो गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग के पीछे के हिस्से की तलाशी लेते हैं। फ्लैशलाइट जमीन पर मार कर देखते हैं तो गौर करते हैं कि वहां ओस से ढकी हुई घास में कोई जूते के प्रिंट्स नहीं होते। जेनिफर के अपार्टमेंट में पुलिस को लिविंग रूम से ये चीजें मिलती हैं: खून में भीगी हुई अंडरवेयर, एक अदद सिक्योरिटी कैप और एक बड़ा सा चाकू। ओह, घर में घुसने वाला आदमी ब्रायन गिब्सन ही था। ब्रायन गिब्सन को पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि अपनी अंडरवेयर हमें दिखाओ। वो कहता है कि मैंने आज पहनी ही नहीं है। पुलिस डिटेक्टिव्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ब्रायन जेनिफर के अपार्टमेंट में वापस आ रहा था अपनी अंडरवेयर, कैप और चाकू लेने और ये जांचने के लिए कि जेनिफर मर चुकी है या नहीं। पुलिस ब्रायन गिब्सन को गिरफ्तार करती है। डिटेक्टिव्स सिक्योरिटी कंपनी की फाइल्स जब निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ब्रायन ने अपनी मुलाजिमत के इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे झूठ बोले थे। उसके पास ना तो हाई स्कूल का डिप्लोमा था, ना ही वो सिक्योरिटी की नौकरी करने का काबिल था। कई वारदात में मुलव्विस रह चुका था और नकली कागजात दिखाकर उसने इस कंपनी में अपनी जगह बनाई थी। आखिरकार ब्रायन गिब्सन को कत्ल की कोशिश का मुजरिम करार देकर 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेनिफर मोरे को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वो अपने घर जाने से इनकार कर देती है। वो अपने अपार्टमेंट में एक दिन भी गुजारना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि फ्लैट का हर कोना उसे उस रात के दर्दनाक हादसे का याद दिलाएगा। वो 2 ही हफ्तों में अपना अपार्टमेंट बेचकर अपनी माँ के घर कुछ अरसे के लिए मुंतकिल हो जाती है। 2-3 साल जेनिफर के बहुत ही मुश्किल से गुजरते हैं। यकीनन इस तरह के हमले के बाद अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना आसान नहीं है। रात में घर से निकलने का डर, डरावने ख्वाब की वजह से नींद का उजड़ जाना, लोगों पर मुश्किल से भरोसा करना, ये सब अलामात जेनिफर को बहुत तंग करते रहे। चंद साल बाद जेनिफर की मुलाकात एक अच्छे शख्स से होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि जेनिफर शादी की दावत किसको भेजती है। जेनिफर की शादी में 911 ऑपरेटर रिचर्ड एवरेट मेहमान खुसूसी था। अगर उस दिन रिचर्ड जेनिफर को अच्छा मशवरा नहीं देता तो शायद आज जेनिफर जिंदा नहीं होती। जेनिफर आजकल कामयाब वकील है और वो अपने अहले अयाल के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, ये थी जेनिफर मोरे की कहानी। खून खराबा देखते जाइए, खुश रहिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना